Hi everyone, good evening. Such a nice Saturday evening, and all of us are here to learn a little more about our digestive system. Um, so my name is Swati, and I work in Bangalore in the IT industry. But along with that, I am very uh, enthusiastic about my own health and my family's health. And I also work as a wellness coach. So today we are going to or throw a little more light on acidity. I'm sure all of us know or have experienced acidity at some point of our, you know, of our time or life. And our loved ones also might be getting, the acid reflux, but we don't know what to do permanently to get rid of it or get a cure. So we have here Dr. Nivedita. She is a veterinary doctor by profession. She is working in Odisha, and she's a mother of a 3-year-old. And we have you know she is going to tell us a little more about myths, do's and don'ts of acidity. So over to Dr. Nivedita. Hi everyone, hello and namaste, namaskar to everyone. I am Dr. Nivedita Mishra and I am a veterinary doctor as Swati told. But in spite of my medical knowledge and all my professional techniques, I could not help my father come out of regular belching and acidity he had. And all his diagnostic tests were clear and he had to take daily 8 to 10 tablets. Still, he wasn't getting any relief. There I thought I had to change my approach, and we started to try holistic health approach, and magically we saw results in him, and now he is completely cured of acidity. And so there I had a very strong belief that we need something inside our life apart from our medicines, apart from our western kind of approach. We need a holistic health approach inside our life. So there comes my story. So today's topic or today's webinar we are having on acidity. So frankly speaking, acidity we are talking, that means we are talking about our digestive system. So it's a very long system inside our body, from 20 to 30 feet long. Still, God has made it so unique. Every part of it has a different function inside us. So there is a very unique bag inside us, I would say. It is stomach, and it is very uniquely different pH or acidic. Its pH is ranging from 1 to 3. So it is very unique inside our digestive system. From the moment we have a food inside our mouth, our body starts acting on that food and breaks it and utilizes it to give us the energy throughout our day and make us the way we are. So this is the point, saying that we have acidic environment inside our body. It is so natural. But why it is a problem to us? We all have gathered today because this acidity has become hyper or out of control inside our body, and now we are facing consequences on our health. We are having some problems inside our lives. That's why we want to know more about acidity or heal it. But before going more into the details about acidity, I would like to, like all of you, to know something about this unique bag inside us, that is stomach. So as we are having a vanity bag or luggage bag inside our home, you must have seen the outer covering of it is of leather or resin or cloth, and it has an inner layer also. So similarly, our stomach is having an outer layer of muscles, 2 to 3 layers of muscles, and some blood vessels inside it to provide it energy, and the inside inner layer, which is
a very thin layer of cells and very special cells. These cells are very secretory in nature. What they do, they accumulate some kind of enzymes inside them and they burst out their enzymes into the bag or lumen. And the special cell which is we are talking about, that is acidity, it is parietal cell. These parietal cells are having a pump inside them. What they do is they throw out H plus ions into the lumen of the stomach. So there comes the acidity or acidic environment inside it, and with chloride ion H plus Cl minus becomes HCl, which is the main acid inside the stomach. So God has made this stomach because we had so many components inside our plate, and major part of it carbs or proteins, and this specific bag is made up for the digestion of protein, I think. So without the help of acid, we cannot break down easily that protein molecules. So this is the function of stomach, and this is where acidity comes into role inside our body. Great. So we actually came to know what is how the stomach functions, but we also want to understand why acidity happens. So, Dr. Nivedita, could you tell a little bit about what are the reasons or causes of acidity, and what are the symptoms that people might face while getting acidity? So causes की बात आ रही है, so पेट की बात हो रही है तो खाने की बात obviously आएगी हमारे दिमाग में. So main reason we know we are having something bad in our input, that is our food. So फूड में भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं हम जो गलती कर रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल या लाइफ में. सो पहली बात है कि सुबह सुबह बहुत लोग उठ जाते हैं, बट ब्रेकफास्ट करते वक्त वो 11 बजे या उस टाइम हो जाती है, एक ब्रंच की एक कॉन्सेप्ट आ जाती है, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में कर लेते हैं. सो देयर कम्स कि आपकी HCl जो प्रोड्यूस हो रही है उसको तो खाना नहीं मिला जो एक्ट करना है. सो दीज पीपल इवेंचुअली गो इनटू एसिडिक कंडीशन. फिर दूसरी एक चीज है जो लोग कभी कभी मील स्किप करते हैं. चलो आज जैसे ब्रेकफास्ट स्किप किया, डिनर भी कोई कोई स्किप करता है, तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन 2 मील्स. और कभी बहुत सारे लोगों को इतनी बिजी शेड्यूल होती है, उनको खाने का एक टाइमिंग या खाने का शेड्यूल नहीं होता, भूख तो लगती है, उस टाइम वो खाना नहीं खा पाते, एंड दैट HCl इज प्रोड्यूस्ड मोर एंड मोर, और वो ओवर एक्सप्लॉइट हो जाता है. अगेन सम पीपल आर लाइक उनकी लाइफस्टाइल पहले जैसे बहुत पार्टी करनी होती है और ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, but suddenly they get conscious about their figure or their health and start to do some kind of fasting, do some kind of controlled eating, अपने आप से अपनी knowledge लगाकर वो try करते हैं. तो क्या होता है, like for example आपको एक वॉशिंग मशीन में अपने क्लॉथ्स डाल दिए, ऊपर ही ऊपर आप डाल रहे हो, पूरा पैक हो गया है. सो हाँ, अकॉर्डिंगली यू हैव टू पुट मोर अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट इन इट, और होगा क्या, तो ज्यादा ही झाग निकलेगा. सो दिस झाग इज आवर एसिडिटी प्रॉब्लम. सो वी आर इंक्रीजिंग द फूड अमाउंट. आपकी जो स्टमक है आपकी पामफुल ही साइज है, बट व्हाट वी आर ईटिंग इन अ मील वो तो पामफुल नहीं, उससे शायद डबल ही होगा. सो दिस इज अ थिंग विच वी आर वेरी कॉमनली सीइंग इन आवर पीपल हु आर कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी. और बैड हैबिट्स में तो हम लोगों को पता है, जैसे अल्कोहल या फिर स्मोकिंग, ये सब चीजें, स्पेशली कैफीन एडिक्शन, या मतलब कुछ लोगों को सुबह की चाय कंपलसरी है और इतनी एडिक्टेड हैं कि दिन भर में 8 से 10 चाय बननी ही है, चाय हो कॉफी हो. दिस ऑल आर वेरी स्टिमुलेटिंग टू दोज पैराइटल सेल्स. वो और एसिड सिक्रेशन के लिए सिग्नल देते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑल दिस डाइटरी थिंग्स
what we don't know many of us is दो और चीजें हैं जो हम लोगों को एसिडिटी अफेक्ट करती हैं, वो है स्ट्रेस एंड स्लीप। स्ट्रेस एक ऐसी चीज है, इट्स वेरी कॉमन, यू कैन रिलेट टू इट, हम सबको होती है। बट जब स्ट्रेस हो तो आपका दिमाग ज्यादा काम करता है, ऑब्वियस रीजन है, आप ज्यादा सोचने लगते हो एंड इस दिमाग को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है सोचने के लिए। सो ये क्या करता है, सिग्नल भेजता है अपने स्टमक को कि चलो जो भी खाना है पचा कर मुझे जल्दी एनर्जी दो। सो एक HCl सिक्रेशन के लिए ज्यादा सिग्नल मिल जाता है। दूसरी एक बात है कि स्ट्रेस में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके HCl सिक्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्लीप की क्यों जरूरत, मतलब कॉज क्यों आ गई? स्लीप ऑब्वियसली इज अ टाइम वेर यू आर रिजुविनेटिंग और गिविंग रेस्ट टू योर स्टमक। बट ये कैसे हो रहा है कि आप लेट नाइट में सोते हो, आपकी स्लीप शेड्यूल नहीं है, देन ऑब्वियसली लेट नाइट सो रहे हो तो हंगर पैंग्स आती है एंड वी ओवर इट एंड स्टमक को उतना रेस्ट नहीं मिल रहा है। और इनडायरेक्टली भी ये बात है कि आपको डीप स्लीप नहीं होती, देन यू आर इनटू स्ट्रेस हॉर्मोन्स, ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन होती है और गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा होती है। नाउ दीज आर ऑल कॉजेस ऑफ एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी। अभी हम सिम्टम्स पे जाएं, मतलब क्या होगा जब आपको पता लगेगा कि हाँ मैं एसिडिटी के शिकार हूँ या मुझे एसिडिटी हो रही है। सो I think I should give them a 3 category of symptoms. एक तो माइल्ड, एक तो मॉडरेट और ज्यादा हो गया तो सीवियर। माइल्ड में क्या क्या आ जाएगा, आप सोच लो, अगर आपने एक एसिड की बूंद या एसिड डाल दिया अपने स्किन पे, जैसी जलन होती है वैसी जलन आपकी पेट में होगा। सो व्हेनेवर योर स्टमक इज एम्प्टी, आपको उसको फूड नहीं मिला, देन इट इज हैविंग दैट सेंसेशन ऑफ बर्निंग इनसाइड दैट। और वो एसिड सिक्रेशन ज्यादा हो गया, देन इट विल गो इनटू योर फूड पाइप और एसोफेगस। उसके बाद आपके थ्रोट तक आ जाएगा एंड बर्न योर कॉर्ड्स। फिर आपको हार्श टोन, सोर थ्रोट, ऐसे सिम्टम्स मिलेगा। फिर मुंह में आ गए तो आपको एक बिटरनेस लगेगा, जैसे कि आप सलाइवा तो आपका बेसिक है और वो एसिड के साथ मिलके एक सोप जैसा तैयार करेगा, आप साबुन जैसे टेस्ट करता है। आप ट्राई कर सकते हो आज घर पे, साबुन टेस्ट करके देखो, जैसा टेस्ट आएगा वैसा ही टेस्ट लगेगा। ये हो गए माइल्ड से वेरी माइल्ड सिम्टम्स। बट आपको मॉडरेट कब मतलब सिम्टम्स आएगी, थोड़ा ग्रेजुअली ज्यादा आपने केयर नहीं किया या फिर ध्यान नहीं दिया, तो मॉडरेट सिम्टम्स में ये आ जाएगा कि अभी आपका खाना जो हो रहा है HCl के साथ मिलके नीचे जाना शुरू करेगा। तो जो पैनक्रियाज और लीवर की जो एंजाइम्स हैं जो डाइजेस्ट करती हैं, उनको जैसा पीएच चाहिए वो डिस्टर्ब हो गया। अभी खाना आपका जैसे इतना छोटा बनना चाहिए था, बट आधा पच के इधर उधर इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स हो रहा है। सो हमारे जो गट बैक्टीरिया है उनको छोटे मॉलिक्यूल्स की ही आदत है, वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसको खाते हैं। बट अभी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल मिला तो वो बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाएंगे, अलग ही बैक्टीरिया बढ़ के जो ये खा सकते हैं उसको खाएंगे, फिर उनकी जो ग्रोथ बनेगी उसकी वजह से आपका लीकी गट हो जाएगा। मतलब आपके जो अनपच फूड पार्टिकल है, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है, वो आपके ब्लड में जाएंगे, आपके टिश्यू में जाएंगे, फिर एक एलर्जी सिचुएशन हो जाती है, आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है। मेनी टाइम्स पीपल गेट वेरियस स्किन रैसेस, ऑटो इम्यून डिजीज जैसे लूपस हो गया, फिर हेयर फॉल इश्यूज स्टार्ट, ग्रेइंग ऑफ हेयर, हेयर पूरा वाइट हो जाता है, एंड मेनी टाइम्स गैस बन जाती हैं इस गट बैक्टीरिया की वजह से, एंड यू फील ब्लोटेड, आपको खाने का मन नहीं करता, हमेशा आपको फुल लगता है जैसे खाना इधर तक आ गया हो। So these all are coming into moderate category of symptoms of acidity. और ये कब सिवियर हो जाती है, जब ये तो एक अग्नि है, जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं ये एक अग्नाशय है। सो द फायर ईट्स एनीथिंग यू गिव।
सो अभी क्या हो जाता है, वो HCl इतना ज्यादा हो गया है आपके स्टमक में, अभी खाना उतना सफिशिएंट नहीं होता है, फिर वो स्टमक की जो बैक की जो लेयर है उसको स्टार्ट करती हैं खाने के लिए। सो व्हाट हैपेंस कि एक अल्सर बन जाता है, एक घाव बन जाता है उधर। घाव को ज्यादा इरिटेट करते रहेंगे देन इट विल कॉज कैंसर। ये किधर भी, मतलब इसोफेजियल कैंसर भी हो सकती है, स्टमक कैंसर भी हो सकती है, या फिर पॉलिप भी हो सकती है। और इसका इलाज हमारे हाथ में नहीं है, सिर्फ सर्जिकली वी कैन डू दैट, या फिर डॉक्टर के हाथ में है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा। सो बिफोर गोइंग टू द सिवियर मोस्ट पार्ट, द सिम्टम्स व्हेन वी आर गेटिंग इन अ माइल्डर स्टेज, मुझे लगता है कि हमें उस पर ध्यान देना चाहिए और अभी ही काम शुरू करना चाहिए। व्हाट डू यू ऑल थिंक? बहुत बढ़िया। डॉक्टर निवेदिता, आपने बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया, स्पेशली वॉशिंग मशीन का। लोगों के दिमाग में ये बहुत फिट होने वाला है, क्योंकि हम लोग वॉशिंग मशीन तो हर रोज़ यूज़ कर रहे हैं। इमेजिन हमारा स्टमक भी अगर वॉशिंग मशीन की तरह काम करे। आपका स्टमक है और उसमें आपने इतना सारा खाना भर दिया है, जैसे हम वॉशिंग मशीन को अगर पूरा स्टफ कर दें तो कपड़े मूव करने की जगह ही नहीं रहेगी, है ना। और आपने उसमें डिटर्जेंट भी डाल दिया और इतना झाग बन गया, तो वो सारा झाग बाहर ही आएगा। तो इन द सेम वे हमारा स्टमक भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर हमने उसको एकदम बहुत ज़्यादा स्टफ कर दिया है, बहुत खान क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि कब खाना बंद करना है ना। खाना कभी इतना अच्छा लगता है कि खाते जाते हैं, मतलब पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो डेफिनेटली एसिडिटी उस केस में बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो सकती है। um, और मेरे को ये बहुत अच्छा लगा आपने जो बताया कि अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स जब गट बैक्टीरिया को मिलते हैं तो उन बेसिकली उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स अच्छे लगते हैं खाने के लिए। तो गट बैक्टीरिया बहुत ही एक्चुअली हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए गट बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर गट बैक्टीरिया धीरे धीरे करके डैमेज होता जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर निवेदिता कि मार्केट में बहुत सारे मतलब जब भी हमें जलन महसूस होती है पेट में, तो सबसे पहले या तो हम होम रेमेडीज देखते हैं, या फिर बहुत अनकंट्रोलेबल जलन है, डिस्कम्फर्ट है, कहीं हम बाहर गए हैं और वहाँ पे एसिडिटी शुरू हो गई, या फिर किसी मीटिंग में है, कुछ पिज्ज़ा बर्गर ऐसे कुछ खा लिया तो एसिडिटी शुरू हो गई। सो हम लोग बहुत ही क्विक सोल्यूशंस ढूंढते हैं, है ना, जैसे डाइजीन खा लिया। आई एम श्योर एसिडिटी का जब भी नाम आता है तो सबके दिमाग में पुदीन हरा ज़रूर आता है, वो हरे रंग की गोली। तो मैंने एक बार टेस्ट किया था तो मेरे को बहुत ही खराब लगा था, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, डाइजीन भी पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि टेम्पररी जो सॉल्यूशंस हम देखते हैं और यूज़ करते हैं, उसका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट, पहले तो वो कैसे काम करता है बॉडी पे, एसिडिटी पे, और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहता है, तो वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आई थिंक जितने भी लोग इस वेबिनार में हैं, उनके लिए मतलब जब भी एसिडिटी हुआ, वो कबर्ड के अंदर डाइजीन, पुदीन हरा, इनो, ये सब तो जरूर होगा उनके घर पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा कुछ मतलब वैरायटी के मिलते होंगे, आई डोंट नो। स्टिल अभी तो इनो बहुत ही फेमस है, मतलब घर पे टीवी पे ऐड भी आता है कि 6 सेकेंड में आपका प्रॉब्लम खत्म, 1 2 3 4 2 6 काउंट करते ही एक बर्फ आ जाता है, एंड दैट इज नन अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो जो इनो की पैकेट में पाउडर है, आपके खाने के सोडा जो कंपोजिशन है वैसा ही एक कंपोजिशन है, और वो HCl के साथ आपके पेट में एक कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस होता है, और वो गैस की जो कैरेक्टर है वो ऊपर आना शुरू करता है, एंड वी फील कि हाँ, हमारा जो लाइफ की प्रॉब्लम थी आज के लिए तो खत्म हो गया। सिमिलरली मैं तो हर एक जो मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि
कैसे वो चीज हमें कैसे अफेक्ट करती है और उसका क्या काम क्या है, मतलब HCl के लिए वो कैसे हेल्प करता है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ डाइजीन, डाइवॉल, जेलुसिल, उसकी टैबलेट या फिर लिक्विड। तो ऐसे लिक्विड या टैबलेट में 3 से 4 चीजें वेरी कॉमन है। उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सिमेथिकॉन और ऑक्जेटाकेन, ये 4 चीजें आती हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 चीज बेस हैं। तो एसिड के साथ मिलके थोड़ा न्यूट्रलाइज करेंगे, थोड़ा कम करेंगे उसको। सो प्रॉब्लम मगर ये है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा हो गया, यू विल बी हैविंग कॉन्स्टिपेशन, तो दूसरे सुबह आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा हो गया देन यू विल हैव डायरिया। सो कंपनी ने अच्छा मतलब ट्रिक समझा कि दोनों का एक मिक्सचर डाल देते हैं ताकि लोगों को उतना बुरा इफेक्ट भी ना लगे और ये मार्केट में चलती रहे। एंड देन सिमेथिकॉन एक चीज अच्छी है कि वो डिटर्जेंट जैसा काम करता है। मतलब आपके जो स्टमक में मिक्सिंग हो रही है खाने की, मिक्सिंग होते वक्त गैस बबल्स ट्रैप हो जाती है, तो वो गैस बबल को इकट्ठा करके रिलीज करता है, तो या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे जाएगा। एंड देन ऑक्जेटाकेन, इसका इतना कुछ काम नहीं है, वो एक पेन किलर है। सो व्हाट इट विल डू कि आपको जलन महसूस हो रही है तो वो जलन को कुछ टाइम तक आपको फील नहीं करने देगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब मुझे ठीक लग रहा है, आई कैन डू दैट। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस tablets, you will have another known compound, that is rabeprazole, pantoprazole. ये टैबलेट के नाम है PAN40 और RAP20, ऐसे नाम के आते हैं। सो दीज ड्रग्स क्या करते हैं, मैंने एक पंप बोला था आपको, पैराइटल सेल के अंदर होता है, ये वो पंप को ही बंद कर देते हैं, तो H+ बाहर आना बंद हो जाता है। सो बेसिकली आपको उस टाइम पे खाना भी बदहजमी धीरे धीरे होता रहेगा। बट ग्रेजुअली अगर आप 10 दिन 12 दिन या महीने में 2-3 बार ले रहे हो, व्हाट यू विल सी कि स्टमक को भी उसको एक नॉलेज है, उसकी कैरेक्टर ही है H+ सिक्रीट करना। अगर आपने जबरदस्ती उसको बंद किया, व्हाट इट विल डू कि ज्यादा सेल प्रोड्यूस करने लगेगा ताकि वो HCl प्रोड्यूस कर सके, तो उधर पॉलिप होना शुरू हो जाएगा, कैंसर होना शुरू हो जाएगा, जिसको आप मतलब क्योर क्या है, उसको सर्जरी ही एक रास्ता है। फिर और एक भी नाम है उसमें, रैनिटिडिन, बहुत ही फेमस है। तो ये क्या करता है, हिस्टामिन एक केमिकल है, जैसे हॉर्मोन्स होते हैं वैसे हार्मोन का एक छोटा वर्जन सोच लो आप। हिस्टामिन रिसेप्टर्स होती है स्टमक के लाइनिंग में, तो वो ये हिस्टामिन के रिसेप्टर्स पे लगकर उसको बंद करता है। तो हिस्टामिन क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है स्टमक को कि तुम एसिड प्रोड्यूस करो, तो एसिड बंद हो गया प्रोड्यूस होना। बट रैंटिडिन के साथ भी प्रॉब्लम है, ये हिस्टामिन को ब्लॉक करता है, मगर हिस्टामिन एक चीज है जो सिर्फ स्टमक में पाया नहीं जाता, आपके लीवर में है, आपके स्किन में है, आपके ब्रेन में है। सो मेजरली आप देखोगे जो लोग रैंटिडिन खाते हैं उनको डिजीनेस होता है, सिर चकराना, नींद आना, ये सब सिम्टम्स दिखती है। और ज्यादा दूर खाओगे, मतलब क्रोनिकली 3 महीने 2 महीने ऐसे खाते रहोगे, देन इट कैन लीड टू मेमोरी लॉस टू। इन ओल्ड एज इट इज सीन, इट इज प्रूवन। सो ये सब चीजें हैं। और एक भी साइड इफेक्ट ये देखा गया है कि वेट गेन के लिए भी ये सब ड्रग्स हेल्प करती हैं। कैसे, क्योंकि हम लोग जब मेडिसिन खा रहे हैं तो ये टेम्पररी रिलीफ देता है, हम लोगों को लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है स्टमक में, एंड वी टेंड टू ईट मोर, ज्यादा खाते हैं और ग्रेजुअली वेट गेन होना शुरू हो जाता है। सो इवन इफ यू गो फॉर होम रेमेडीज, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मानना है होम रेमेडीज कैन बी अ सपोर्टिव बट दे कांट बी अ कंप्लीट क्योर टू योर एसिडिटी। और मतलब जब आपने थोड़ा अजवाइन की पानी ले ली या फिर कोल्ड मिल्क सुबह ले लिया, आपको परेशानी मतलब पेन से मुक्ति हो जाती है, बट इन लॉन्ग टर्म यू कांट
क्योर कंप्लीटली वो क्योर नहीं होता। सिमिलरली विथ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो, आप लोगों को हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक डब्बा आयुर्वेदिक मेडिसिन का आप हमेशा हर रोज सुबह लेना पड़ेगा। सो बोथ विथ आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक डिपेंडेंसी इज श्योर, आप डिपेंडेंट लाइफ टाइम रहोगे उस पे। एंड व्हाई, मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में हम लोगों की, व्हाई वी शुड गो फॉर समथिंग अदर देन दिस मेडिसिन, इनके क्या क्या इल इफेक्ट्स होंगे लॉन्ग टर्म में। आप जब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर के पास जाओगे, आपके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा होगा 2-4 टैबलेट्स, और लेफ्ट साइड में एक एडवाइस लिखा होगा ADV लिख के, नीचे लिखा होगा चेंज योर लाइफस्टाइल या चेंज योर फूड हैबिट्स। आपको डॉक्टर ने बोला होगा कि मेरे मेडिसिन के साथ आप खाने पे भी ध्यान दो। सो दिस इज द थिंग, ये कंप्लीट क्योर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपके लिवर पर ऑब्वियसली स्ट्रेस करेगा क्योंकि ये केमिकल्स हैं। थर्डली, ये जो गेम है H+Cl-, ये सारे आयोन्स के किडनी पर थोड़ा इफेक्ट करता है, क्योंकि किडनी ये आयोन्स को यूरिन के थ्रू मतलब बाहर निकालता है हमारे बॉडी से। उसके अलावा मैंने जो बोला कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में जहां जहां कैल्शियम है उसको रिप्लेस करना शुरू करता है। सो क्या होता है कि ज्यादातर ओल्ड एज में हम लोगों को देखा जाता है कि ओल्ड एज पीपल हु टेक ऑल दिस जेलुसिल और ये सब, दे विल बी प्रोन टू फ्रैक्चर्स, क्योंकि कैल्शियम ही बोन डेंसिटी कम हो जाती है, यू आर प्रोन टू फ्रैक्चर्स। उसके अलावा विटामिन B12 भी बहुत लो हो जाती है बॉडी में, एंड ऑब्वियसली यू विल फॉल वेरी सिक, लाइक एनीमिया हो जाता है, लेथर्जिक लगता है, यू वॉन्ट फील सो मच एनर्जेटिक एनीमोर। ये सब सारी चीजें हैं। उसके अलावा यू कांट टेक दिस मेडिसिन व्हेन यू आर ऑन थायराइड और आयरन सप्लीमेंट्स स्पेशली। सो ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू कीप इन माइंड, हम लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि इसके तरफ आना ही नहीं है, टेम्पररी रिलीफ या टेम्पररी ट्रीटमेंट की तरफ आना ही नहीं है, हमें एक परमानेंट थिंग सोचना है जो कि हमारे एसिडिटी को मतलब जड़ से उखाड़ सके। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। Wow, that is so much of information, Dr. Nivedita. स्पेशली मतलब हम लोग, हमारे घर में तो रहता ही है इनो, है ना? किसके घर में नहीं रहता है? यू शुड रेज योर हैंड्स। सबके घर में रहेगा इनो। इनो डज सच अ माइंड ट्रिक कि अच्छा गैस बनी निकल गई, मतलब पेट ठीक हो गया, है ना? तो बट प्रॉब्लम मतलब रूट कॉज पे तो इफेक्ट हुआ नहीं, लेकिन गैस निकल गई तो माइंड को लगा कि टेम्पररी रिलीफ मिल गया। सो दैट इज समथिंग, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ माइंड ट्रिक। सेकंड, जो भी हम दवाई ले रहे हैं एसिडिटी के लिए, आई थिंक वन ऑफ द मेडिसिन शी मेंशन्ड विच लीड्स टू लाइक धीरे धीरे करके फर्मेंटेशन कर देता है, मतलब बॉडी में फर्मेंटेशन बढ़ा देता है, तो फिर that has an ill effect on again gut bacteria, right? And definitely what I wanted to say is कि जो भी हम कर रहे हैं it is a vicious cycle। मतलब हमारा एसिडिटी हो रहा है, फिर हम टेम्पररी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उसकी वजह से फिर से हमारा हेल्थ खराब हो रहा है। सो वाई वुड वी वांट टू डू समथिंग दैट विल डैमेज आवर हेल्थ? So all of, I mean, that is what I understood from Dr. Nivedita कि we should look for a more permanent solution, क्योंकि ये सारे जो temporary solutions होते हैं they are only till the time we are taking the tablets. But how we can work on our on our health to have a long lasting effect is something I want to understand from Dr. Nivedita. Over to you, Dr. Nivedita. ओके, तो मतलब ये परमानेंट चेंज क्या है और क्यों करना चाहिए, ये तो आई हैव ऑल्सो फेल्ट पर्सनली। मेरी एक जर्नी है, हमारी एक फैमिली पूरा एक चेंज हुआ है इसी पे। सो परमानेंट चेंज हमें ये पता लग गया है कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, स्पेसिफिकली एलोपैथिक की मेडिसिन, वो 3 से 4 दिन के बाद
आपको कुछ काम देना, कुछ फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, और आयुर्वेदिक की मेडिसिन आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। तो हमें ऐसा एक चाहिए जो लाइफ टाइम ना हो, जो हमारे डिपेंडेंसी ना बढ़ाए। और साइंटिफिकली आप देखने जाओगे तो आपका जो मतलब मैंने जो स्टमक की बैग बोली, सो अंदर की जो लेयर है, इट ओनली टेक्स 55 to 60 days टू रिज्यूमिनेट। तो इट्स वेरी वेरी इजी एंड पॉसिबल टू चेंज आवर, मतलब हमारी एक नई स्टमक बन सकती है इन 2 to 3 months। सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, व्हाई नॉट चेंज आवर लाइफस्टाइल, and this is the only answer I feel, which is without any side effects and which we can do without any drugs too। so इसमें तो obviously आ जाएगा हमारा डाइट। हमारी जो डाइट की चारों तरफ हैबिट्स है, जैसे कि खाना हमें ठीक से चबा के खाना चाहिए, और खाने के बाद हम लोग यूजुअली सो जाते हैं। थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। हमारे खाने में क्या क्या रहना चाहिए, थोड़ी अल्कलाइन, ऑब्वियसली एसिडिटी है तो अल्कलाइन की तरफ होनी चाहिए। हो गया आपका, मतलब ग्रीन्स ऐड करना चाहिए तो अल्कलाइन ऑब्वियसली होगा आपका प्लेट। तो एक्सरसाइज भी थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि पचने के लिए भी आसान रहेगा, एंड दिस वोंट लीड यू टू रिफ्लक्स, मतलब वो जो ऊपर आ जाता है खाने के बाद, हम सो जाते हैं यूजुअली इन स्पेसिफिकली लंच आवर्स, तो वो गैस्ट्रिक एसिड ऊपर आने का चांसेस है। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं आप डिनर जब थोड़ा ऐसा शेड्यूल करो कि आप 2 घंटे बाद सोने जाओ। सो दिस आर द थिंग्स। और स्लीप और स्ट्रेस तो ऑब्वियसली हमें चेंज ही करना पड़ेगा, एक स्लीप शेड्यूल रहनी चाहिए। और स्ट्रेस की बात करूँ तो सबको होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1 चाइल्ड टू डे 90 और डे 100 मैन और वुमेन। सो और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है स्ट्रेस के बारे में, कि हम सबको लगता है हमारे स्ट्रेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है और सबसे यूनिक है हमारे स्ट्रेस, एंड दिस कांट बी चेंज अनलेस वी चेंज द सिचुएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल से कि मैं एक जॉब में हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, सो वी थिंक कि ये स्ट्रेस जो है, अगर हमने जॉब छोड़ लिया ये स्ट्रेस बंद हो जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रूथ। मुझे होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में यही अच्छा लगा कि जो स्ट्रेस है हमें चैनलाइज करना है उसको। जैसे हम लोग आते हैं, मतलब दिन भर की थकान होती है, हम सो के उसको कंप्लीट करते हैं, वैसे ही दिन भर की जो स्ट्रेस है उसे चैनलाइज करके उसको निकालना है अपनी बॉडी से। उसके इल इफेक्ट्स हमें दूसरे दिन को टेक ओवर नहीं करना। वो मैंने सीखा इसमें और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे जो फादर हैं उनके लिए थोड़े बहुत डाइट में चेंजेस और एडिटिव्स भी लगे, जैसे कि त्रिफला तो सबको पता है, इट्स वेरी स्पेसिफिक टू क्योर एंड हेल्प इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम, की जो प्रॉब्लम्स है उसको साफ करने के लिए त्रिफला इज वेरी वेरी इफेक्टिव। और किरक्यूमिन भी है, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सबको पता है। सो दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेंशन गोइंग ऑन इनसाइड योर स्टमक। सो जो द सेल्स, उनको भी थोड़ा स्ट्रेस और मेडिटेशन मिल जाएगा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से रिलीज होने के लिए। दूसरा एक बात है कि प्रोटीन इनिशियली उनको दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा एसिड बना है प्रोटीन के लिए, सो हाइपर एसिडिटी है तो मतलब आप आग को पानी देने जैसा काम हो गया। ज्यादा आग हो रही है तो ज्यादा पानी चाहिए, सो पानी इज प्रोटीन and the egg is obviously acid. So these all are the things we have to add, we have to be conscious inside our life, और कैसे हमारी एक ऐसी लाइफस्टाइल हो जिसमें ज्यादा कुछ करना ना पड़े, ये लाइफ लॉन्ग चले, और इजीली बाय प्रोडक्ट के हिसाब से हमारी जो डिजीजेस है वो हील हो जाए, वो क्योर हो जाए, और हमें कुछ मेडिसिन पे डिपेंड ना होनी पड़े। That's my take over a permanent solution, permanent change inside our life for acidity release. Wow, that's awesome, Dr. Nivedita. मतलब definitely holistic approach is something all of us should take,
just to maintain our good health so that later on we don't have any kind of issues going ahead. But what I, as a wellness coach, what I tell people is हमारा जो स्टमक का साइज होता है वो हमारे 2 हाथ के बराबर होता है. सब अपना 2 हाथ ऐसे करो, all of you. Yeah, I can see some people are not doing it. Please do it. हाँ, okay. बस इतना ही खाना आपको खाना होता है. तो आपका, अगर आपका प्लेट का साइज इससे बड़ा है या आप इससे ज्यादा खा रहे हो, so you are actually overeating. तो हमारा जो स्टमक होता है, it is actually made from it is elastic. आपका जो स्टमक लाइनिंग होता है, it is elastic. So जितना भी आप स्टफ करोगे ना, it keeps on expanding till the time it reaches its maximum limit. तो आप based on how your lifestyle is, how your workout pattern is, if you're overeating, if you're eating more than this much, it will definitely lead to digestive issues going ahead, है ना? Also, when we are working on our health, on any kind of concerns in our body, these 6 pillars of health play a very, very important role. So if you are seriously looking to get, or मतलब for yourself or for your family member, to get rid of acidity once and for all, कि भैया मेरे को ना तो डाइजीन चाहिए, मेरे को ना पुदीन हरा चाहिए, मेरे को रात को हार्टबर्न्स नहीं चाहिए, because a lot of times people get heartburns at night, and a lot of times if you're an older person, जैसे हमारे पापा मम्मी होते हैं, तो हमें थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि हार्ट बर्न्स आर वेरी क्लोज टू आवर चेस्ट. तो इट कैन बी confused with other concerns, maybe a heart attack or mild angina or something like that. So you don't want that question in your mark, I mean in your head, that ये है या ये acidity है. So once and for all we should just get it out of our system कि acidity अब नहीं है. Some people get acidity in the morning, some people get acidity in the evening, some people get acidity after eating oily food, some people get acidity after eating spicy food. It can be anything. So आपका body unique है, and lot of times it's very confusing क्योंकि आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, मतलब आप बहुत कंफ्यूज्ड हो कि मतलब मेरे दिमाग में हमेशा ये गाना आता है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, है ना? तो वो गाना अगर आपके भी दिमाग में आता है, टॉक टू द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू टू दिस वेबिनार. दे विल हेल्प यू गेट कनेक्टेड टू अ वेलनेस कोच हु कैन गाइड यू वेरी वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ कि आपके लिए आपका वेलनेस प्लान क्या है, because everybody has a different body structure, body body type. So I'm just sharing this Google form to register if you're looking for help on any kind of acidic relief. So just, yeah, you will see it. Yeah, I think admin has shared it to everyone. I hope you're able to see it. Yes, okay, great. Great. So if you have any questions around acidity, the floor is open for the next 15 minutes. Meanwhile, you can fill the form. Do drop in your queries or questions so that it can you will know in what direction should you go ahead with, and you should take an informed decision about any kind of acidic relief for your body. So this is how the questionnaire looks like. It's only 4 short questions. Do take out 2 minutes to fill this up. Invited by to this group is basically the person who has invited you. You can fill their name. Okay, for example, if Dr. Nivedita has invited me here, I will fill Dr. Nivedita's name in invited by. So floor is open. Please, you can drop in your questions in the chat box.
Great. So meanwhile, Dr. Nivedita, there would be very commonly asked questions to you from by your patients or clients. Uh, could you just answer a few of them? So many questions come really, Swati. So very peculiar questions also come. One of the peculiar questions I'll ask, I'll say that one person also asked, my mother had this problem. So is it genetic? So the answer would be from my side, it will be like genes तो obviously हमारे मतलब हम जो हैं वो उसके पीछे जीन्स ही हैं, but what kind of environment we are giving it to trigger that, so that is basically in our hands. Which the thing which is not in our hands, we always discuss that कि हमारे father से आ गया, हमारे mother से आ गया, we should not blame them, but what is in our hands कि हमारे life को हम change कर सकते हैं, हमारे हाथ में है. So I think that will be the answer. And many times question come around home remedies specifically. तो एक पर्सन ने पूछा था कि कोल्ड मिल्क मैम ये हेल्प करता है क्या? ऑब्वियसली बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, सो मिल्क डजंट गो इनटू द डाइजेशन वेरी इजीली. स्टिल किसी किसी को कोल्ड मिल्क बहुत हेल्प करता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो वो कोल्ड है, सो इट विल बी लाइक मतलब आप एक ठंडी चीज खाओ तो उस टाइम आपको मतलब सपोज आप डेंटिस्ट के पास गए हो और आपको टूथ निकालना हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको एक डेंटिस्ट बोलता है कि आप जाकर एक आइसक्रीम खाओ. व्हाई इज दैट? कि आपको नम कर देता है, उस टाइम वो पेन नहीं रहता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो कैल्शियम की अमाउंट है मिल्क में, वो HCl के साथ मिक्स होके एक डिफरेंट चीज बनाती है, सो इट विल बी न्यूट्रलाइजिंग दैट HCl. उसके अलावा आपको पता होगा कि मिल्क एक इमल्शन है, मतलब ये एक ऐसी चीज है, ऑयल और फैट की मिक्सचर, मतलब ऑयल और ऑयल और वाटर की मिक्सचर. तो ऑयल और वाटर को अगर आप ग्राइंडिंग करोगे, जैसा बनेगा वो एक मिल्क है. सो इसमें जो ऑयल है, जो फैटी एसिड्स हैं, वो एक परत बना देते हैं इनसाइड ऑफ आवर स्टमक लेयर. सो जहां जहां अल्सर्स होंगी, जहां जहां घाव होगा, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है. So this gives a good feeling. It works like a band-aid to us, just like sucralfate, one of the drug we use in peptic ulcer. So एक अच्छा एहसास, एक अच्छा feeling आता है, मगर it is not permanent. Once you eat and you go for lunch, उसके बाद obviously the layer goes off. or during dinner also you may feel that acidic feeling or heartburn or chest pain, anything you can feel again. So it is not a permanent solution. Thank you, Dr. Nivedita. There was another question somebody asked that does the acidity, I mean, if somebody has acidity for a long time, is it possible for them to get skin diseases like psoriasis? Obviously, मैंने जैसे आपको बोला है, इसमें लूपस, सोरियासिस और बहुत सारे स्किन डिजीज, आपको ऐसी स्किन डिजीज जो आप सब ट्राई कर चुके हो मगर कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हो, डेफिनेटली इट इज ड्यू टू योर गट, ड्यू टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम. यू शुड लुक आउट फॉर दैट. क्योंकि मैंने जैसे बोला कि गट बैक्टीरिया, आपकी जो सेल्स है गट के अंदर, वो गैप हो जाती है, और जो भी चीज हमारी बॉडी को फॉरेन हो, हमारी बॉडी स्टार्ट्स टू रिएक्टिंग इट. सो बेसिकली रिएक्शन कैसे किधर देगा? सडनली वो वाइटल ऑर्गन्स पे नहीं देता. it gives to minor things which are very unnecessary or least necessary to us, like hair हो गया, skin हो गया. So the ill effects are seen mostly in these organs very quickly.
हेयर फॉल हो जाती है, ग्रेइंग हो जाती है, स्किन में एलर्जी आ जाती है. सो दीज आर द थिंग्स. So somebody asked that उनकी मदर इन लॉ बहुत ज़्यादा चाय पीती हैं और उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? ऑब्वियस, जिन्होंने पूछा है उनके पास आंसर भी है. चाय और कैफीन, इट्स वेरी वेरी मतलब स्टिमुलेटिव टू HCl सिक्रेशन. वो मतलब वो एक ऐसी चीज है, और स्पेशली दूध की चाय. दूध भी एक प्रोटीन है. सो ऑब्वियसली HCl प्रोड्यूस ज्यादा होगा. और इसके साथ मतलब कैफीन और अल्कोहल की जो कैरेक्टर है, और निकोटिन जो स्मोकिंग में यूज होती है, इनकी एक कैरेक्टर है कि ये स्टमक की मसल लेयर पे भी काम करती है. तो सडनली दोज आर रिलैक्स्ड. सो आपकी जो एसिड है उसके अंदर ऊपर इजीली चले जाते हैं, क्योंकि एक गेट है स्टमक के आगे और पीछे, लास्ट एंड को और बिगनिंग को. सो स्पिंक्टर भी ऐसी एक मसल ही है. सो मसल जब रिलैक्स हो जाता है, उसके कंटेंट्स ऊपर आ जाती हैं. सो वी डू फील हार्ट बर्न और एसिडिटी की सारी चीजें, सारे सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं उस टाइम. Okay, we have another question. Anirudh is asked. I mean, he's asking that sometimes he gets digestive issues and gastric after having breakfast like sprout and milk, and sometimes he doesn't. So he doesn't know what is going. I mean, what he's doing wrong and how to fix it. Okay, so as Swati also said, I will also be telling you this कि हमारी बॉडी टाइप सभी का अलग है, एंड देर इज नो परफेक्ट डाइट फॉर मतलब यूनिवर्सल डाइट कुछ नहीं है. जैसे एक ही परफेक्ट डाइट है वो सबके लिए सही है. सो वी डोंट हैव दिस कॉन्सेप्ट हियर. सो आपके लिए जो प्रॉब्लम हो रही है, किस दिन, उस दिन स्ट्रेस लिया है क्या, उस दिन आपकी स्लीप पूरी हुई है, उससे पहले वाले दिन आपने मोशंस ठीक गए हैं क्या, वो सारे चीज मैटर करती है. सो बेसिकली व्हाट यू कैन डू फॉर नाउ इज यू कैन कॉन्टैक्ट द पर्सन हु इनवाइटेड यू हियर, और उनके साथ टच में रहो. सो बेसिकली ही और शी कैन गाइड यू more and see your diet, plates, and whole of lifestyle. You can be seen and guided accordingly. Awesome. Thank you. Just a reminder, quick reminder, if you haven't filled the form, do fill that up. I would also like to share a few yoga poses that will help in acidic relief. So, I mean, if you want, you can write it down, but these are on top of our on top of my mind. So one is Paschimottanasana. There is Supta Baddhakonasana, cat cow pose, Vajrasan, Ardha Matsyendra Asana, Trikonasana, and Veerbhadrasana 1. So if you are, so you can do these yoga poses along with the good food, the alkaline food that you are eating on a regular basis. Plus, you could do a few breathing workouts to reduce the stress, and definitely follow a sleep hygiene. Sleep hygiene includes not touching gadgets 1 hour before you're sleeping, or eating heavy meal just before you're sleeping. You should keep a gap of 2 to 3 hours before having a meal and before you sleep. So okay, there's another question. I think this is the last question that we'll be taking, and then we'll be wrapping up. What foods should we avoid to make the body more alkaline than acidic? Sorry, Swati, what foods we should avoid? What foods should we avoid to make the body Alkaline. Yeah. So, One still, second. yes. Shama, you wanted to know
to make the body more alkaline, right? I do understand the question Okay. exactly. Okay. So उनका ये पूछना है कि हम लोग क्या नहीं खाएं ताकि हमारी बॉडी अपने आप अल्कलाइन हो जाए. So बेसिकली एसिडिटी की मतलब एसिड सिक्रेशन की कमी आ जाए. So आई थिंक कि जो खाना है हम लोगों का, व्हाट वी शुड अवॉइड, जो हम लोग बोले जैसे हमने बात की चाय कॉफी, ये सब चीजें जो स्टिमुलेट करती है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं. But suddenly your body is already in a mode to secrete more acid, so something you will not eat और ये अपने आप बंद हो जाए, ये नहीं हो सकता. So it's already in a stressful mode, ये ओवर प्रोडक्टिव हो गया है, अभी बहुत काम करना चाह रहा है. So what we can do is we will gradually neutralize it, give a very basic diet, and slowly gradually you have to come to a very normal diet जिसमें आप थोड़े बहुत एसिडिक और जो भी फूड है आप रेगुलर डाइट यूज कर सकते हो. सो व्हाट वी कैन डू इज हम लोग ऐड कर सकते हैं कुछ आइटम्स इन आवर फूड to make our food alkaline so that it neutralizes the excess acid. But हम एक ही चीज अवॉइड कर सकते हैं, एसिडिक फूड. हम ये ऐसा कुछ मैजिक नहीं है कि हम लोग ये फूड अवॉइड कर दिया और बॉडी अपने आप अल्कलाइन हो गया, वो ऐसा नहीं हो सकता. सॉरी टू से, बट दिस इज द वे. इट इज वेरी मतलब माइनर साइंस, बट ऐसा ही काम करता है. स्वाति में एक इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझे याद आया. एक लेडी है बैंक में, उनकी बेली फैट है, वो बहुत कंप्लेन करती थी और उनको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम है, तो ऊपर आ जाता है एसिडिटी. सो स्टिल शी कुड नॉट कनेक्ट विथ हर ओबेसिटी एंड एसिडिटी. शी वाज थिंकिंग कि हाँ मुझे खाने का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा मील टाइम ड्यू टू बैंक जॉब she could not have the meal at right time. But belly fat is also a concern, I would say, क्योंकि आपका जो belly fat अगर ज्यादा हो गया, so आपके स्टमक को ज्यादा स्पेस नहीं है टू एक्ट. और ये जो अगर कंप्रेशन मतलब अगर वो एक्ट भी कर रहा है तो उसकी एसिड जो है ऊपर आ जाती है आपकी फूड पाइप में, तो उनको हार्ट बर्न होता था आफ्टर ईटिंग, क्योंकि वो बैठी रहती थी दिन भर और उनको एक ये प्रॉब्लम आती थी. सो वी शुड रिलेट आवर ओबेसिटी, आवर लाइफस्टाइल विथ एसिडिटी. एसिडिटी इज अ साइड इफेक्ट और इंडिकेशन, आपको सिग्नल मिल रहा है कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए. सो पिक इट अप और हम लोगों को हीलिंग की तरफ कैसे बढ़ना है वो सोचना चाहिए. एक्चुअली इससे मेरे को एक बहुत जो आपने बताया इससे बहुत ही मेरे को एक एग्जांपल याद आया. हम जब छोटे थे तो बलून्स, पानी के बलून्स से खेलते थे, है ना? तो इमेजिन हमारा स्टमक भी वो पानी का बलून है. तो अगर हमने दोनों हाथ से उसको कंप्रेस कर दिया, जैसे हमारा बेली फैट कंप्रेस कर रहा है, तो हमारी उंगलियों के बीच में से वो निकल जाता था, या फिर फट जाता था, या फिर उसका पानी निकल जाता था उसकी ओपनिंग से. तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही जब हमारा बेली फैट ज़्यादा होता है तो हमारा स्टमक भी बेचारा क्या करे, कहाँ जाएगा उसका कंटेंट, तो वो ऊपर की तरफ आता है. सो थैंक यू फॉर शेयरिंग such a lovely experience. एक और लास्ट क्वेश्चन है. आपने सजेस्ट किया त्रिफला जूस. Are there any vegetarian food sources that we can include in our food to get rid of this acidity? Something that will surely cure to all body types, even at a minor level. ओके, श्योरली देयर आर फूड आइटम्स. आपको जितने भी हो सकता है आपको ग्रीन्स खाने चाहिए, क्योंकि आपको मतलब इट्स वेरी साइंटिफिक कि जितने भी हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सब अल्कलाइन है, क्योंकि उनकी जो कंटेंट्स हैं पॉलीफिनॉल्स है वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. तो आपको जो स्ट्रेस है आपकी स्टमक के अंदर उसको भी मतलब हेल्प करेंगी आपकी स्ट्रेस मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए. सो इफ यू वांट अ सुपर फूड
in my mouth कि ऐसा एक चीज बोल दो जो सबके लिए काम करेगा, तो एक ही एडवाइस मैं दे सकती हूँ, वो सबके लिए यूनिवर्सल है कि आपके खाने का जो प्लेट है उसमें जितना हरा रंग भर सकते हो आप ट्राई करो भरने के लिए, सो दैट विल वर्क विथ यू। अम, तो अनिरुद्ध, बेसिकली आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही स्पेसिफिक है आपके लिए। आई मीन जैसे डॉक्टर निवेदिता ने बोला था कि एक डाइट, एक यूनिवर्सल डाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सिर्फ त्रिफला नहीं है जो काम कर रहा है। त्रिफला मतलब ये एक बैंडेड की तरह नहीं है कि आपने त्रिफला खाया और सब ठीक हो गया, है ना। तो कुछ लोगों ने और भी पूछा है कि ये त्रिफला क्या है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। व्हाट इज त्रिफला, यू नो, हाउ टू टेक इट, व्हाट quantities to take it in, but it doesn't work that way. I think Dr. Niveta also told about increasing the protein rich foods in our diet, because protein almost acts as a fire extinguisher, है ना। मतलब आप कहीं भी फायर लगती है तो आप सैंड थ्रो करते हो ना, जिससे फायर डाउज हो जाए। तो इन द सेम वे वी हैव टू वर्क ऑन मल्टीपल फैक्टर्स टू गेट रिड ऑफ एसिडिटी। तो एग्जैक्टली आपके लिए क्या काम करेगा वो somebody who is working very closely with you will be able to help you understand, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं it is very generic। मतलब लॉट ऑफ पीपल कैन इम्प्लीमेंट इट, बट आपका फूड पैटर्न क्या है, आप कितना तेल खा रहे हो, आप कितना क्वांटिटी खा रहे हो, आप कब खा रहे हो, आपका फूड प्लेट में कितना हरा सामान, मतलब वेजिटेबल्स हैं, या कौन से कलर्स आप वेजिटेबल्स के खा रहे हो, कौन सा वर्कआउट कर रहे हो, क्या स्ट्रेस है, क्या स्लीप है, आप किस वेसल में खाना बना रहे हो, है ना। क्योंकि आप अगर एल्यूमिनियम वेसल्स में बना रहे हो तो इट एड्स टू द टॉक्सिसिटी एंड इट माइट इंक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ योर बॉडी। तो आप कौन से खाने वेसल्स में बना रहे हो, ऑल ऑफ दैट एड्स, मतलब दैट इज समथिंग दैट अ वेलनेस कोच वर्क्स ऑन। तो इट इज नॉट कि अच्छा आप त्रिफला खाएं तो ठीक हो जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक अ बैंडेड, इट्स नॉट लाइक अ क्विक फिक्स। If you're looking for a solution of a permanent or a longer term, then you would have to work on every aspect of your health, है ना। So I hope I could answer some and Dr. Nivedita and myself, we could answer a few questions around acidity. If you do have you know, sometime later, if you do get a question or concern, do get in touch with the person who's invited you. And thank you for being with us on this wonderful evening, and hope to see you soon with another interesting webinar. Thank you. Thank you so much.